वेलकम बैक टू द चैनल होम्योपैथिक मेडिकोसिस। और आज हम डिस्कस करेंगे कैल्केरिया कार्प के बारे में। अपनी एक तरह से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे मेंटल स्फेयर को, जो हमने पार्ट 1 में समझा था। तो उस वीडियो से आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 में हम समझेंगे कि आगे कैल्केरिया कार्प के और क्या क्या हमें मेंटल स्फेयर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स और कैल्केरिया कार्प के हैं। इसके बाद भी एक और वीडियो होगा इस पर, जिसमें हम कैल्केरिया कार्प के बेसिकली चाइल्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द कैल्केरिया कार्प चाइल्ड लुक्स लाइक। पार्ट 1 में हमने समझा था कि कैल्केरिया कार्प इज ए काइंड ऑफ इंडोलेंट पर्सन, काइंड ऑफ वेरी timid person, lack any kind of physical or mental exertion, leukophlegmatic character. Any kind of exertion mentally or physically will bring out the symptoms. उनके fear को समझा था, उनके सिंप्लिसिटी को समझने की कोशिश की थी कि क्यों उन्हें कैल्केरिया कार्प को एज ए सिंपल लाइफ पसंद है, एज ए सिंपल गोइंग इन वन मोशन लाइफ. दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हैपर kind of thing in his life. They don't want any kind of adventure or doing the new things. They want the life the simple, they want the life to be easy. और ये चीज़ आपको उनके मेंटल लेवल पे भी मिलता है और फिजिकल लेवल पे भी देखने को मिलता है. There are different kind of fears in the कैल्केरिया कार्प. उसको समझने की कोशिश की थी. और द बेसिक जो हमारा समझने का था उस नज़रिया था कि कैल्केरिया कार्प के ओयस्टर को, कि व्हाट्स द कैल्केरिया कार्प ओयस्टर के कैसे सिम्टम रिजेंबल करते हैं कैल्केरिया कार्प के पेशेंट को. आज हम कैल्केरिया कार्प के सेल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स रिजेंबलिंग द सेल ऑफ द ओयस्टर. तो हार्ड प्रोटेक्टिव सेल किस तरह से एक ओयस्टर के हार्ड प्रोटेक्टिव सेल किस तरह से अपने अंदर एक सॉफ्ट डिफेंसलेस बॉडी को कैसे वो बचाव करता है, उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, हम वहां से समझने की कोशिश करेंगे. तो ये पार्ट 2 में बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग रहेगा कैल्केरिया कार्प के स्टडी में. The principal defense of this weak and vulnerable creature against the inimical environment and against the stronger beings is to withdraw into himself. कैसे बचाव करना है? सबसे इजी तरीका है बचाव करने का इन्वायरमेंट और स्ट्रॉन्गर बींग्स के अगेंस्ट की अपने आप में सिमट जाए. टू गेट विथड्रॉ इनटू हिमसेल्फ. जब आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे दूसरे के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस के प्रति, सो देन यू विल बी एबल टू save yourself from the harmful or inimical kind of environment surrounding you. To protect his sensitive psyche, he retires into his cell, closing off the world and ignoring it. Failure of adaptation or psychological isolation. This is the number of physical symptoms aggravate while being alone. Though कैल्केरिया कार्प wants to be alone, but बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो एग्रीवेट करेंगे by living alone, by being alone, and by talking to or being with others. It leads to lot of amelioration in lot of complaints. Simply हम समझ सकते हैं कि एक पर्सन को अगर हेडेक हो रहा है और but the headache, the symptoms will aggravate because of being alone, because due to several kind of thought process or undergoing tussle or conflict inside the mind, a lot of physical symptoms will aggravate while being alone. So the person generally wants to be alone, but on the physical level you will see that symptoms will aggravate, but the talking or being with others will lead to amelioration of the symptoms, just like pulsatilla, phosphorus and arsenic. These three are, especially phosphorus and pulsatilla, we know phosphorus loves to communicate with others. They are kind of the life of phosphorus is all about being with others, or they want to get magnetized, or kind of they want to talk with other, even unknown person. They are very good in communication with this. Pulsatilla likes all kind of consolation for himself, and arsenic is also there, so amelioration by talking or to being with others. Although withdrawn but not as closed or introverted. अब हमें पता है कि sepia और natriumur is kind of very introverted and get into very indifference kind of phase, but कैल्केरिया अकेला तो रहना चाहेगा विड्रॉन फेज में रहने का, लेकिन उस तरह से उस लेवल का इनडिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा जो हमें सीपिया और नेट्रिम्यूर में देखने को मिलता है. नेट्रिम्यूर एंड सीपिया, वी नो दैट दे आर द वन ऑफ द वो उस फेज की रेमेडी है फीमेल की, जिसमें बेसिकली
एज ए पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंडिफरेंस क्रिएट हो जाता है एनी काइंड ऑफ कंपनी, और दे जस्ट अवॉइड एनी वन क्लोज टू देम, एंड दे वांट्स टू लिव इन देयर ओन use, own block, own level of space. Dividend or retiring more accurate terms for Calcaria. Calcaria fear of being in new challenge, हमने पहले भी बात की। Calcaria को किसी प्रकार की एडवेंचरस चीज़ें पसंद नहीं। They wants to be they want to keep the thing as simple as it is. They hate the new challenge of an enterprising new start. His all old life have been restricting, even difficult, but at least familiar. So ये लाइन से हमें पता चलता है कि क्यों Calcaria hates the old new form, because that will be unfamiliar to him. That will be kind of adventurous thing to him. So that's why he will like the old kind of thing. भले वो कितना भी मुश्किल हो, वो डिफिकल्ट हो, बट एटलीस्ट उसे पता तो है कि ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है. दे विल नेवर ट्राई टू चेंज द थिंग्स, and thus less psychologically intimidating than challenging new life. Homesickness we find in Calcaria, Ignatia, Silesia, Capsicum, Ignatia, Silesia, also in Crimea we find this symptom. Homesickness, getting away from home will make you sick. Calcaria clings to everything related to home, wants to gather his family and pets around him, often extremely fond of animals as they do not challenge his low self-confidence. We able to elicit very peculiar things कि किस तरह से जो symptoms हमें ऊपर दिखते हैं कि ये होता है, वो ऐसा क्यों होता है, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं. Home finds security and support, so that's why Calcaria likes to be in home, because there is the support is there is security is there is familiarity is there. So that's why Calcaria having the homesickness. Rubric avaricious, Calcaria tends to hang on to his own. Calcaria dislike outside pressure, any kind of physical any kind of, हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि एनी काइंड ऑफ आउटसाइड प्रेशर, वेदर फ्रॉम पेरेंट्स और वेदर इन क्लास फ्रॉम टीचर और फ्रॉम बॉसेस in working in office, these will all work against the Calcaria. Though Calcaria is sharp minded, though Calcaria can do the things in fine manner, but ये अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आउटसाइड प्रेशर डालते हैं, then Calcaria will go into the nervousness and anxiety kind of situation, जो कि हमें काफ़ी देखने को मिलती है नॉर्मल सिचुएशंस में भी. तो Calcaria के साथ ये बहुत ज़्यादा है. सो ये हम फिजिकल लेवल पे भी देखते हैं कि they will like the loose comfortable clothes. कितना हम ब्यूटीफुली हम लोग मेंटल और फिजिकल लेवल को कोरिलेट कर पा रहे हैं कि मेंटल लेवल पे प्रेशर पसंद नहीं है, तो हमने ये देखा कि फिजिकल लेवल पे किस तरह का प्रेशर होगा. तो दे विल वांट द लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स. Calcaria को तो पसंद है लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स, as well as Lachesis and Lycopodium will want the loose comfortable clothes. Lachesis around the throat in more commonly, and Lycopodium around the waist. Calcaria has great love of potatoes, weakness of the imaginative faculty. Calcaria is fair-minded, often displaying a low-key wisdom. In group situation, he plays the role of passive and non-judgmental observer to whom others gravitate for support. So he will always be, ऐसा नहीं, he will not be dynamic character. So अगर कोई ग्रुप सिचुएशन हुआ या कोई परफॉर्मेंस या प्ले करना हो, तो वो हमेशा अपना कैरेक्टर भी इस तरह का चूज करेंगे कि जिसमें उन्हें कोई सी डायनेमिसिटी नहीं करनी पड़े, कोई एडवेंचरस चीज ना करनी पड़े, और एक सिंपल दूसरे पर सपोर्ट पे रह सके कि भैया मुझे सिर्फ एक मैसेज ट्रांसपोर्ट करने का रोल दे दो, या कोई एक ऐसा काम दे दो जिसमें मुझे मतलब डिसीजन मेकिंग वाला काम जो है वो रोल या फिर एक काइंड ऑफ प्ले में भी वो चीज़ नहीं करना चाहेगा, तो रियल लाइफ में तो दूर की बात नजर आती है. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, दिस रेमेडी सप्लाइड जस्ट द नेसेसरी एडिशनल डिग्री ऑफ सोशल अवेयरनेस. इसेंट्रिसिटी बिहेवियर भी देखने को मिलती है, जस्ट लाइक नेचर म्यूर एंड लैकेसिस. बस थिंग इज इन Calcaria को like a child unconscious of his departure from the norm and therefore free from embarrassment. Calcaria को पता नहीं था कि वो eccentric behavior कर रहा है, कि वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर रहा है, वो एक थोड़ा अलग बिहेवियर कर रहा है जो कि एक नॉर्मल मैच्योर बंदे को नहीं करना चाहिए. सो ये उसे
मेंटली या कॉन्शियस लेवल पे उसे पता नहीं है, दैट्स वाई इट्स फ्री फ्रॉम एम्बेरसमेंट। उसे किसी प्रकार का एम्बेरसमेंट नहीं होता कि आई एम डूइंग द इसेंट्रिक बिहेवियर। इसेंट्रिक मतलब बिल्कुल हटके, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल अलग। नेचर म्यूर अवेयर ऑफ एक्टिंग स्ट्रेंजली दो। सो डिफरेंस हम कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी दोनों में देखने को मिलती है, नेचर म्यूर में भी, कैलकेरिया में, सॉरी लैकेसिस में भी एंड कैलकेरिया में भी। और लेकिन कैलकेरिया की इसेंट्रिसिटी में हम देखने को मिलता है कि दे आर अनअवेयर ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म, मतलब नॉर्मल बिहेवियर से अनअवेयर है कि व्हाट इज द नॉर्मल बिहेवियर फॉर हिम। So therefore they are free from embarrassment, whereas nature mure has know the what is the normal behavior, and therefore they will get more influence mentally if anyone just touch her emotions. Procrastinator, obviously one who is very lazy, one who is doesn't want to do the things, will always procrastinate the things uh, uh, to do, cannot finish his work on allotted time. These individuals cannot be adhered to timetables, cannot exert themselves to plan their time and meet deadlines, habitually late, inherent slowness of process. Calcaria last to arrive, so he's last to leave. So one thing you have the saying that Calcaria will always be late because he's never hurried, never worried like Argentum Nidalgum or any other ancestral remedy. He's a slow, he's a flaccid, he's always be late, never finish his work. Some individuals leave without saying goodbye, just like nature knew from awkwardness, embarrassments. कैलकेरिया में वहाँ क्या है, से गुड बाय एंड डू रेयरली, मतलब एक लेट तो आया लेकिन फिर भी हर प्रकार की जो नॉर्मिसिटी है, हर प्रकार की जो नॉर्मल बिहेवियर है वो कैलकेरिया के अंदर है। सो ही विल डू द नॉर्मल गेट पे जाना कि हाँ जी चलते हैं, ठीक है आप भी निकलिए अब समय हो गया एंड ऑल दैट, बट नेचर म्यू विल नॉट से दिस थिंग बिकॉज उसे पता है कि मैं लेट आया हूँ तो मैं बस निकल लेता हूँ किसी तरह एम्बेरसमेंट और फ्रॉम ऑकवर्डनेस। Sulfur will always in hurry, so he will say he will leave without saying goodbye. Phosphorus constituency type that can be late, does for effect, उसे पता है और वो जानबूझ के लेट होते हैं, does for effect realizing that her entrance will be more dramatic if others are kept waiting। अगर उसे पता है कि वो इम्पोर्टेंट बंदा है, तो इम्पोर्टेंट बंदा क्या होता है ना, सबसे लेट आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीफ गेस्ट जी आके सबसे पहले बैठ जाए कुर्सी पर, बाकी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। तो फॉस्फोरस अपने आप को वो समझता है कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो ही विल कम लेट सो दैट हिज एंट्रेंस विल बी काइंड ऑफ ए ड्रामेटिक। And so this is the we compare the rituals or the entry or exit of different personality in a group or in any kind of functions. What is the nature of a pearl in Calcaria? हमने oyster को पढ़ा पूरी तरह से, हमने सेल के नेचर को पढ़ा कैलकेरिया के, अब हम पर्ल देखते हैं। कैलकेरिया के अंदर जो oyster के अंदर जो मोती है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स कैलकेरिया से मैच करते हैं। Calcaria cannot develop himself but demands structured and preferably individualized guidance from outside। ये लाइन देखिए, आगे की लाइन कितनी खूबसूरती से लिखी हुई है, जीनियस डज नॉट स्प्राउट फ्रॉम बैरन सीड्स, टैलेंट इन कैलकेरिया प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड जीनियस रिजल्ट फ्रॉम कल्टीवेशन। टैलेंट है, एबिलिटी है, लेकिन कैलकेरिया नीड्स द गाइडेंस, कैलकेरिया नीड्स द सपोर्ट। वो बिना सपोर्ट के, बिना गाइडेंस के, बिना किसी के सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकता। ही नीड्स दैट। सो डिफरेंट पर्सनैलिटीज देयर। सो इस पर्सनैलिटी को किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितनी खूबसूरती से कर सकते हैं कि कैलकेरिया डरा हुआ रहता है। कैलकेरिया फिजिकल और एनी काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाता, एनी काइंड ऑफ प्रेशर उसे टॉलरेट नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि उसे क्यों ऐसा होता है, व्हाई ही हेट्स एनी काइंड ऑफ चेंज, व्हाई ही हेट्स एनी काइंड ऑफ आउटसाइड प्रेशर, why he hates any kind of doing any more level of mental or physical constant surveillance and persistent discriminating guidance. Calcaria works slowly, ploddingly and consistently piling stone upon stone। धीरे धीरे से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। एक कछुआ
जो धीरे धीरे एक के बाद एक कदम रखते हुए उसे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, एक थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ा सा चीयर अप करना, समय समय पर थोड़ा सा उसको सपोर्ट देते हुए चलना, उसको अंदर कॉन्फिडेंस भरते हुए चलना, एंड ही विल एबल टू रीच हिज ओन target if any guidance is there, if any support is there for Calcaria. So that is the beautiful Calcaria for us. Thank you for watching, and please like and subscribe the channel for more such videos. And this Calcaria has, I think, one more videos coming in your way. So